We are so glad that you could connect with us in this online worship. हम बहुत खुश हैं कि आप इस ऑनलाइन सभा में आप हमसे जुड़ पाएं। Let us get into today's word. आइए हम आज के वचन में चलते हैं। I'll be reading from Genesis chapter 28 verse number 10 onwards. मैं उत्पत्ति 28वें अध्याय के 10वें वचन से पढ़ूंगा। If you want, you can take it in your Bibles or you can follow it along in the screen. आप अपने बाइबल में निकाल सकते हैं या फिर आप स्क्रीन पे भी फॉलो कर सकते हैं। Genesis chapter 28 verse number 10. उत्पत्ति 28:10। Meanwhile, Jacob left Beersheba and traveled towards Haran. सो याकूब बेरशिबा से निकलकर हारान की ओर चला। Verse number 11. At sundown, he arrived at a good place to set up a camp and stopped there for the night. 11वां वचन, और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया क्योंकि सूर्यास्त हो गया था। Jacob found a stone to rest his head against and lay down to sleep. सो उसने उस स्थान पर के पत्थर में से एक पत्थर को अपना तकिया बनाया और सो गया। As he slept, he dreamed of a stairway that reached from the earth up to heaven. तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है। And the angels of God going up and down the stairway. और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते और उतरते हैं। Verse number 13. At the top of the stairway stood the Lord and he said, I am the Lord. 13वां वचन, और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है कि मैं यहोवा तेरे दादा इब्राहिम का परमेश्वर। This is a part of the life of Jacob. ये याकूब के जीवन का एक हिस्सा है। Jacob was brought up in a dysfunctional family. याकूब एक उथल-पुथल वाली परिवार में उसका पालन पोषण हुआ। He stole his elder brother's birthright. उसने अपने बड़े भाई का पहलौठे का अधिकार छीन लिया। He deceived his father to get the blessings. आशीर्वाद को लेने के लिए उसने अपने पापा को अपने पिता को भी धोखा दिया। But God meets him in the middle of his journey. लेकिन अब उसके यात्रा के बीच में परमेश्वर उससे मिलते हैं। He is running away from his elder brother. वो अपने बड़े भाई से भाग रहा है। His elder brother has said that I will kill you. उसके बड़े भाई ने उसे कहा है कि मैं तुझे मार दूंगा। So he is going towards his uncle's house. तो वो अपने मामा के घर की तरफ जा रहा है। And he is going towards the people he may not have met before. हो सकता है वो ऐसे लोगों के घर की ओर जा रहा है जिससे वो कभी मिला भी ना हो पहले। Jacob is going through these complex emotions at the time. याकूब ये जटिल भावनाओं से होकर इस समय पे गुजर रहा है। Jacob would have thought that I have the birthright. याकूब ने ये सोचा होगा कि मेरे पास तो पहलौठे का अधिकार है। I have the blessing. मेरे पास आशीषें हैं। My mother is completely supporting me. मेरी माँ मेरा सहायता करती है। So life is fine. तो मेरा जीवन अच्छा है। But that was not the plan of God. लेकिन परमेश्वर की ये योजना नहीं थी। And all of a sudden Jacob finds himself in this situation. और अचानक से याकूब अपने आप को इस परिस्थिति में पाता है। Where he is pushed out of his home and family. जहाँ पे वो अपने घर और अपने परिवार से निकलकर बाहर आता है। His normal has been disturbed. उसका सामान्य जीवन जो है वो उथल-पुथल हो गया है। His plans has been disturbed. उसकी योजनाएं उथल-पुथल हो गई हैं। All his strategies have all of a sudden failed. उसकी सारी रणनीतियां असफल हो गई हैं। And he finds himself in the middle of this wilderness being fearful. और इस मरुभूमि के बीच में डरा हुआ याकूब है। What was going on in his mind? उसके दिमाग में क्या चल रहा है? He would have been thinking, will my brother forgive me? वो ये सोच रहा होगा कि क्या मेरा भाई मुझे क्षमा करेगा? He might be thinking, will my uncle accept me in his house? वो ये सोच रहा होगा कि क्या मेरे मामा मुझे एक्सेप्ट करेंगे अपने घर He पे? was a man with a troubled heart. वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसका दिल जो है वो परेशानी से भरा था। And at that time God meets him. और उस समय पे परमेश्वर उससे मिलते हैं। His normal was disturbed. उसका सामान्य जिंदगी उथल-पुथल हो गया His था। present was filled with fear. उसका आज जो है वो डर से भरा हुआ And he था। was looking towards an uncertain future. और वो एक असुनिश्चित भविष्य की ओर देख रहा है। And in many ways the current times that we live in are quite similar. आज जिस परिस्थिति में हम हैं वो याकूब के जीवन से बहुत मिलता है। Our normal lives have been disturbed. हमारा जो नॉर्मल जीवन है वो उथल-पुथल हो गया है। Our plans, our ideas, what we wanted to do, everything has been disturbed. हमारी योजनाएं जो हम करना चाहते हैं वो सारी चीजें इधर-उधर हो गई हैं। Our present seems to be surrounded by fear. हमारा आज जो है वो डर से घिरा हुआ है। And it seems like we are looking towards an uncertain और ऐसा लग future. रहा है कि हम एक असुनिश्चित भविष्य की ओर देख रहे हैं। But at this point God meets Jacob. और इस समय पे याकूब से परमेश्वर मिलते हैं। When he is sleeping, God shows his glory.
जब वो सो रहा था तो परमेश्वर अपनी महिमा को उस पर प्रकट It करते is हैं। amazing to see that God shows up in the most unexpected places. क्या ही अद्भुत है ये देखना कि परमेश्वर ऐसे जगह पे आते हैं जहाँ पे उम्मीद भी नहीं की जा रही है। God shows up and he reiterates the promise that he had given to Abraham and tells that, I will also bless you. जो वादा परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था वो वादा फिर से याद दिलाते हैं वो याकूब को और बोलते हैं मैं तुझे आशीषित करूंगा। But when we come to verse number 15, लेकिन जब हम 15वें वचन में आते हैं God becomes personal here. यहाँ पे याकूब से व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर And बात God करते हैं starts speaking to Jacob and into his life. और याकूब के जीवन में परमेश्वर बोलना शुरू करते हैं। And this is our focus for this morning. और आज की सुबह हमारा यही ध्यान का केंद्र होगा। Genesis chapter 28 verse number 15. उत्पत्ति 28वां अध्याय 15वां वचन। God is telling Jacob, याकूब से परमेश्वर कहते हैं what's more, और सुन I am with you. मैं तेरे संग रहूंगा I will protect you. और जहाँ कहीं तू जाएगा वहाँ तेरी रक्षा करूंगा One day I will bring you back to this land. और तुझे इस देश में मैं लौटा के ले आऊंगा। I will not leave you मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना करूं तब तक मैं तुझे न छोड़ूंगा। until I have finished giving you everything I have promised you. जब तक मैं वो पूरा ना कर लूं जो मैंने तुझसे वादा किया मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। We see 4 promises in the scripture. इस वचन में हम 4 वादों को देखते हैं। The first thing that God was telling Jacob was, I am with you. पहला चीज जो याकूब से परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरे संग हूँ। One of the names given to Jesus was Emmanuel. एक नाम जो यीशु को दिया गया है वो इम्मानुएल है, God with us. परमेश्वर हमारे संग। This is his desire. ये उसके हृदय की पुकार है। He wants to be with us. वो हमारे संग रहना चाहते हैं। He doesn't want to live separated from us. वो हमसे अलग कभी नहीं होना चाहते। Even in the Garden of Eden, ईदन के बागीचे में भी when Adam and Eve sinned against God, जब आदम और हवा ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, God came down looking for them. परमेश्वर उनको ढूंढते हुए आए। The complete Bible is an expression of God's desire to be with man. पूरे बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर के हृदय की पुकार है कि वो मनुष्य के साथ रहना चाहते हैं। We need God. हमें परमेश्वर की जरूरत We है। need to know that He is with us. हमें ये जानना जरूरी है कि वो हमारे साथ हैं And He will help us. और वो हमारी मदद करेंगे। No matter what life on this earth might throw at us. ये जीवन हमारे लिए चाहे कुछ भी क्यों ना लेके आए। After Jesus was raised from the dead, जब यीशु मरे हुए में से उठाए गए, He gathered His disciples together. उन्होंने अपने चेलों को इकट्ठा किया And His final words before He would leave this planet earth. और इस धरती को छोड़ने से पहले उनका जो आखिरी वचन था, And we read that in Matthew 28 verse number 20. और वो हम मत्ती 28 और उसके 20वें वचन में पढ़ते हैं। Jesus said, और यीशु ने कहा be sure of this, कि इस बात का सुनिश्चय रखो I am with you कि मैं तुम्हारे संग हूँ always, हमेशा even to the end of the age. और मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। That was a promise that God gave all of us, to all of us. यही वादा है जो परमेश्वर ने हम सबको दिया है। Jeremiah was called by God when he was a young boy. जब यिर्मयाह एक युवावस्था में था तब परमेश्वर ने उसको बुलाया। Jeremiah was called to be the prophet to the nations. यिर्मयाह को बुलाया गया था कि वो पूरे राष्ट्र के लिए एक नबी ठहरे, But he was so scared. लेकिन वो बहुत डरा हुआ And था he said, I can't speak for you. और उसने कहा कि परमेश्वर मैं तेरे लिए नहीं बोल सकता, I am too young. मैं बहुत ही युवा हूँ। What was God's response? परमेश्वर का क्या प्रतिक्रिया And था? we read that in Jeremiah chapter 1 verse number 8. यिर्मयाह 1:8 में हम इसको पढ़ते हैं। God says, I will be with you. परमेश्वर ने उसे कहा कि मैं तेरे संग रहूंगा। It doesn't matter what you are going through at this time in your life. इस समय में ये मैटर नहीं करता कि आप इस समय में किस परिस्थिति से गुजर रहे But हैं, this is what God is telling us. लेकिन परमेश्वर आपसे ये कह रहे That हैं I am with कि you. मैं तुम्हारे संग हूँ। You may not be perfect. हो सकता है आप सिद्ध ना हो, There may be so much negativity in me or around me. हो सकता है मेरे अंदर बहुत सारी नकारात्मक चीजें हो और मेरे आसपास भी बहुत सारी नकारात्मक But चीजें let us हैं, take our focus from that and fix our focus on the promises of God. लेकिन हो कि हम अपना ध्यान वहां से हटाकर परमेश्वर पर अपना ध्यान केंद्रित करें। During these times, we need to have the confidence that King David has. इस समय हमें वो हियाव होना चाहिए जो राजा दाऊद को था। In Psalms chapter 23 verse number 4, भजन संहिता 23 और उसके चौथे वचन में King David says, राजा दाऊद कहता है, even though I walk through the valley of the shadow of death, हो सकता है कि मैं अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं, I will fear no evil, तो भी मैं हानि से न डरूंगा, for you are with me. क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। Your rod and your staff, they comfort me. तेरे सोटे और तेरी लाठी ने मुझे शांति मिलती है। This is the confidence with which we have to move. ये वो हियाव है जिससे होकर हमें चलना है आगे। That even if we walk through the valley of shadow of death, कि हो सकता है कि हम अंधेरे भरी तराई से गुजर रहे I will हैं, not be afraid
afraid लेकिन मैं डरूंगा नहीं, because my God is with क्योंकि me. मेरा परमेश्वर मेरे संग है। I love how this scripture is explained in TPT translation. टीपीटी ट्रांसलेशन में जिस तरीके से ये वचन बताया गया है मुझे बहुत पसंद है। And it says, Lord, even when your path takes me through the valley of deepest darkness, और ये ऐसा कहता है कि प्रभु यदि आपका रास्ता मुझे घोर अंधेरी तराइयों से भी लेकर क्यों न जाए, fear will never conquer me. तो भी डर मुझ पर हावी न होगा, For you already have conquered the क्योंकि fear. तू मुझ पर पहले से ही हावी है। You remained close to me तू मेरे नजदीक में होकर रहता है and led me through it all the way. और मुझे चलाता है। Your authority is my strength and my peace. तेरी प्रभुता मेरी ताकत और मेरी शांति है। The comfort of your love takes away my fear. आपके प्रेम की तसल्ली मेरे सारे डर को ले लेती I है। will never be lonely, for you are near. मैं कभी अकेला न होऊंगा क्योंकि तू मेरे समीप है। He is near us. वो हमारे समीप है, He is with us. वो हमारे संग है। Wherever we may be, हम चाहे कहीं भी क्यों in ना हो, our houses, in our workplaces, हम अपने घर पे हो, हम अपने कार्यस्थल पे हो, in our going, in our coming, हमारे जाने और हमारे आने में He is near वो us. हमारे समीप है। We should not be afraid of हमें डरना anything. नहीं है। Jacob, you don't know what you will be facing in the future. याकूब, तुम भविष्य में क्या देखोगे तो पता नहीं है तुम्हें। You will go through tough time in Laban's house. हो सकता है कि तुम बहुत ही टफ समय से गुजरोगे लाबान के घर You will में। go through the pain of being separated from your son Joseph for 13 हो years. सकता है कि तुम इस दर्द से गुजरोगे, तुम्हारा पुत्र जोसेफ जो है वो तुमसे दूर हो गया है 13 साल तक। During all these times, इन सारी चीजों के बीच में you can rest in my promise तुम मेरे वायदे में विश्राम करो that I am with कि you मैं तुम्हारे संग हूँ and I will be with और you मैं तुम्हारे संग रहूंगा। through all these things that you go through in life. चाहे तुम्हारे जीवन में कुछ भी क्यों ना हो, मैं तुम्हारे संग रहूंगा। Each one of us may be going through different challenges. हम में से हर एक अलग अलग चुनौतियों से होकर गुजर रहे होंगे। Our plans and different things, schedules may have been challenged. हो सकता है कि जो हमने योजना बनाई थी, जो हमने शेड्यूल बनाया था, वो सारी चुनौती के डोर But पर खड़ी rest be है। assured that God is with us. लेकिन हमें एक चीज सुनिश्चित करना है कि परमेश्वर हमारे संग है। Isaiah chapter 43 verse number 1 and 2. इज़ाया 43 1 और 2। By now thus says the Lord, इज़राइल तेरा रचने वाला और याकूब तेरा सृजने वाला यहोवा अब who यूं कहता है। created you, O Jacob, and he has formed you, O Israel. इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, Fear not, मत डर for I have redeemed you. क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। I have called you by your name. मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। You are mine. तू मेरा है। When you pass through the waters, जब तू पानी से होकर गुजरेगा, I will be with you. मैं तेरे संग रहूंगा। And through the rivers, they shall not overflow you. और नदियां में होकर चले तब भी वो तुझे डुबा ना सकेंगी। When you walk through the fire, you shall not be burned, जब तू आग में से चलेगा तब तुझे आंच न लगेगी nor shall the flames scorch you. और उसकी लौ तुझे न जला This सकेगी। is his promise for us, ये वादा हमारे लिए भी है that he is with us. कि वो हमारे संग है। Whatever we may be going through, हम चाहे किसी भी परिस्थिति से क्यों ना गुजर रहे let हो, us trust in him. हो कि हम उस पर विश्वास Let करें। us have the confidence that King David has, हमें वो हियाव होना चाहिए जो राजा दाऊद को था, so that we can say that my God leads me. कि वो कहता है कि मेरा परमेश्वर मेरा अगुवाई He is करता my है, good shepherd. वो मेरा अच्छा चरवाहा है। The second promise that God is giving Jacob is दूसरा वादा जो याकूब को परमेश्वर दे रहा है वो ये है, in verse number 15. 15वें वचन में, He says that I will protect you. कि मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। Where will we go for our security? हम अपनी सुरक्षा के लिए कहाँ जाएं? How shall we deal with challenges that come all of a sudden in our life? जो अचानक से चुनौतियां हमारे जीवन में आती है उसके साथ हम कैसे निपटारा करें? Psalmist says in chapter 57 verse number 1. भजनकार 51:1 में कहता है, He says, have mercy on me, O God. परमेश्वर मेरे ऊपर दया कर, Have mercy. मत दया कर। I look to you for protection. मैं तेरे ओर देखता हूँ अपनी सुरक्षा के लिए। I will hide beneath the shadow of your wings मैं तेरे पंखों के नीचे छुप जाऊंगा until the danger passes by. जब तक ये सिचुएशन टल नहीं जाता। God is our protection. परमेश्वर हमारी सुरक्षा है। We will run under his wings to find the security that we need. उसकी पंखों तले हम चले जाते हैं उस सुरक्षा को ढूंढने के लिए जो हमें चाहिए। We don't find our security in our name, fame, money or whatever we may have in this world. हमारे पैसा, हमारे नाम में हमारी सुरक्षा नहीं है। We find our security and purpose in God. हम अपना सुरक्षा और अपना पर्पस जो है वो परमेश्वर में पाते हैं। God protects us. He is in our houses. परमेश्वर हमारी सुरक्षा करते हैं और वो हमारे घरों में भी हैं। In Deuteronomy chapter 23 verse number 14. व्यवस्था विवरण 23 और उसका 14वां वचन। Deuteronomy chapter 23 verse number 14. व्यवस्था विवरण 23 4वां वचन। God says, 14वां वचन। the camp must be holy.
परमेश्वर कहता है कि जो तुम्हारा घर है, जो तुम्हारा कैंप है, वो पवित्र होना For चाहिए, the Lord your God moves around in your camp to protect you. क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे कैंप में घूमते हैं तुम्हें बचाने के लिए। Your house is the camp. आपका घर आपका कैंप है, And God Almighty moves around in your house. और परमेश्वर आपके घर में घूम रहे हैं। His protection and His coverage is around you. उनका सुरक्षा और उनका प्यार आपको ढापे हुए है। He is our God who protects us. वो हमारे परमेश्वर है जो हमारी सुरक्षा करते हैं। Many times fears and anxieties all of a sudden attack us. कई बार हम विचलित हो जाते हैं, डर जाते हैं। We need a place where we feel safe and far from harm. हमें एक ऐसा स्थान चाहिए जहां हम हानि से काफी दूर हैं। God provides His safety परमेश्वर हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं under His wings. अपने पंखों तले, Under His wings. अपने पंखों तले। In Jeremiah chapter 1 verse number 8 that we read some time back, यिर्मयाह 1:8 जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, it says that I will be with you वो कहता है कि मैं तेरे साथ रहूंगा, and will protect you. मैं तेरी सुरक्षा करूंगा। Jeremiah, you don't be afraid of anything, यिर्मयाह तू किसी चीज से डर मत, because God is telling that I am with क्योंकि you परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे संग हूँ and I will be with you. और मैं तेरे संग रहूंगा। We should not live in anxiety, हमें विचलित होने की जरूरत नहीं है, but we should live in the confidence that God is in control. लेकिन हमें इस हियाव में रहना कि परमेश्वर नियंत्रण में We है। may not be able to see the virus. हो सकता है कि हम वायरस को देखें ना, We may not be able to see the coronavirus with our naked eyes. हो सकता है कि हम अपनी आंखों से कोरोना वायरस को ना देख पाएं, But God can see that. लेकिन परमेश्वर उसको देख सकते And हैं His protection and His cover is over our और उनकी lives. सुरक्षा हमारे जीवन पर बनी We need रहेगी। not fear for tomorrow हमें कल का डर नहीं सताए, because He takes care of our tomorrow. क्योंकि वो हमारे कल की चिंता करता No है। matter what the circumstance or situation may be, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, God's protection is covering you. परमेश्वर का सुरक्षा आपको ढापे हुए है। Jacob, you don't be afraid. याकूब तुम डरो मत, I will protect you is मैं what I तुम्हारी सुरक्षा promise. करूंगा। And the third promise that God gives him, तीसरा वादा जो परमेश्वर याकूब को देता है, God is telling Jacob that I will guide you. परमेश्वर याकूब से कहता है कि मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। Many times in the Bible we find the subject of God's guidance. कई बार हम बाइबल में परमेश्वर के दर्शन के बारे में पढ़ते हैं। We have wonderful promises in God's word that He will guide us. परमेश्वर के वचन में अद्भुत वादे हैं कि वो हमारा मार्गदर्शन करेगा। In Jeremiah chapter 10 verse number 23, यिर्मयाह 10 और 23 में हम ये पढ़ते हैं, I know, Lord, हे यहोवा मैं जान गया हूँ that our lives are not our own. कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं We है। are not able to plan our own course. मनुष्य चलता तो है परंतु उसके डग उसके अधीन नहीं है। Not one of us would question the fact that God's people do need guidance. कि आप इस चीज पे प्रश्न नहीं करेंगे कि परमेश्वर के लोगों को मार्गदर्शन की जरूरत है। And here we see that God's people are asking for God's guidance and God's ways. और यहाँ पे परमेश्वर के लोग परमेश्वर के दर्शन को मांग रहे हैं। We need to ask God and pray to God. हमें परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है और मांगने की जरूरत है। In Psalms chapter 25 verse number 4. भजन संगीता 25 और उसके 4 में हम पढ़ते हैं। Psalms 25 verse number भजन 4. संगीता 25:4 He says, show me the right path. कि मुझे सही मार्गदर्शन The कर। psalmist is asking God to show him the right path. जो भजनकार है वो परमेश्वर से कह रहा है कि मुझे सही मार्ग दिखा, Show me the path. सही मार्ग दिखा। Verse number 5. 5वां वचन, It says, lead me by your truth. मुझे अपने सत्य पर चला। Psalmist says, show me the path. भजनकार कहता है कि मुझे रास्ता दिखा, Lead me in your paths. अपने रास्तों पर मुझे चला। In verse number 9, और 9वें वचन में he's saying, वो कहता है, He leads the humble in doing right, वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देता है। teaching them His way. हाँ, वह नम्र लोगों को अपने न्याय की शिक्षा देता है। Our God shows us the right path. हमारा परमेश्वर सही मार्गदर्शन देते He हैं, leads us through the right path. वो हमें सही पथ पर चलाते हैं And He teaches us about His ways. और वो अपने रास्तों के बारे में हमें For सिखाते every हैं। step in our life, we need God's guidance. हमारे हर एक कदम के लिए अपने जीवन में हमें परमेश्वर के How मार्गदर्शन shall की we deal जरूरत with है। this pandemic that we are facing right now? इस पैंडेमिक सिचुएशन में चाहे हम किसी भी परिस्थिति से क्यों ना गुजर रहे We हों, need God's guidance in that. हमें परमेश्वर के मार्गदर्शन की जरूरत We है। need God's counsel and His ways in this time. हमें परमेश्वर की सलाह और उनके मार्गों की जरूरत है इस समय पर। Psalms chapter 48 verse number 14. भजन संगीता 48 और उसका 14। Psalms 48 verse number भजन 14. संगीता 48 और उसका 14। For that is what God is like. क्योंकि वह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है, He is our God forever and ever. वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा, And He will guide us until we die.
वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। He will guide us until we die. वो मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। He is our guide. वो हमारा गाइड है। He takes us through. वो हमें चलाता है। Galatians chapter 5 verse number 16. गलातियों 5 और उसका 16। Galatians 5:16. गलातियों 5:16। So I say, पर मैं कहता हूँ, let the Holy Spirit guide your lives. आत्मा के अनुसार चलो, Then you won't be doing what your sinful तो nature तुम शरीर की craves. लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। How shall we find guidance? कैसे हम मार्गदर्शन पाएं? We ask the Holy Spirit to lead us. हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि वो हमारी अगुवाई करें। The Lord is ready to lead us in the best pathways. परमेश्वर हमें उत्तम मार्ग के द्वारा लेके जाते हैं। God wants us to take on roads that He has laid for us. हमें वो रोड परमेश्वर चाहते हैं हम ले जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है। He wants us to hear His guidance. परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनकी आवाज को, उनके मार्गदर्शन को सुने। Let His voice be our GPS. हो कि उनका जो आवाज है वो हमारे लिए जीपीएस का काम करे। He promises His guidance through these times. उसका वादा और उसका मार्गदर्शन इस समय में हमें चाहिए। And the fourth thing that God is promising Jacob, और चौथी चीज जो परमेश्वर वादा कर रहे हैं याकूब से, God is telling, I will keep my promise. परमेश्वर कहते हैं कि मैं अपने वादे को पूरा करूंगा। We serve a faithful God. हम एक विश्वास योग्य परमेश्वर की याचना करते Heaven हैं। and earth shall pass away, but not His word. स्वर्ग और धरती टल जाएगी लेकिन उसका वचन नहीं टलेगा। Bible tells us that He is not a man to turn away from His बाइबल word. बताती है कि परमेश्वर कोई मनुष्य नहीं है जो अपने वचनों से मुकर जाए। In Joshua chapter 21 verse number 45. यहोशू 21 और 45 में हम पढ़ते हैं। Joshua chapter 21 verse number 45. यहोशू 21:45। Not a single one of all the good promises the Lord had given to the family of Israel was left unfulfilled. Everything He had spoken came true. जितनी भलाई की बातें यहोवा ने इजराइल के घराने से कही थी उनमें से कोई भी न छूटी, सब की सब पूरी हुई। Whatever God speaks, it will happen. जो भी परमेश्वर बोलते हैं वो पूरा होता है। He is a never changing God. वो कभी न बदलने वाले परमेश्वर हैं। He is God who is always with us. वो परमेश्वर है जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं And His promises are always true. और उनके वायदे हमेशा सच होते When He हैं। says that I will be with you, जब वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे संग रहूंगा, He is with us. वो हमारे संग होते हैं। Let us trust in His word. हो कि हम उन पर विश्वास करें, उन पे वचन पर विश्वास करें। Isaiah chapter 55 यशाया 55वां अध्याय verse number 10 and 11. 10वां और 11वां वचन। For just as rain and snow fall from heaven and do not return there, without saturating the earth and making it germinate and sprout and providing seed to sow and food to eat, so my word that comes from my mouth will not return to me empty, but it will accomplish what I please and will prosper in what I sent it to do. यशाया 55 10 और 11। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां से ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोलने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे सफल करेगा। He is a faithful God. वो विश्वास योग्य We परमेश्वर can है। depend on Him. हम उस पर निर्भर हो We सकते can हैं। count on Him हम उस पर निर्भर हो सकते हैं and look for Him to come through for us. और किसी भी परिस्थिति में वो हमारे पास आए, हम इस चीज पे विश्वास कर सकते हैं। In every circumstance, He is with us. चाहे परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर हमारे साथ होता है। 2 Timothy chapter 2 verse number 13. दूसरा तिमोथी 2 अध्याय 13वां वचन। If we are faithless, यदि हम अविश्वासी भी हों He remains faithful, तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता for है, He cannot deny Himself. क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर We सकता। serve a faithful God. हम एक परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर की आराधना करते हैं। In midst of the complex emotions and pain that Jacob might have been going through at the time, उस जटिल भावनाओं और उस दर्द के बीच में जब जेकब था उस समय पर his normal life was disturbed. उसका सामान्य जीवन उथल पुथल हो गया The था। present was surrounded by fear, उसका आज डर से घिरा हुआ था and future seemed so uncertain. और उसका जो भविष्य है वो अनिश्चित था। And God comes down और परमेश्वर नीचे आते हैं in that wilderness उस मरुभूमि में and tells him, और उससे कहते हैं I am with you. कि मैं तेरे संग हूँ, I will protect you. मैं तेरी सुरक्षा करूंगा, I will guide you. मैं तेरा मार्गदर्शन करूंगा I will keep my promise. और मैं अपने वायदे को पूरा करूंगा। It doesn't matter what we are going through in our इससे lives. फर्क नहीं पड़ता कि हम अपने जीवन में किस चीज से होके गुजर रहे In हैं। fact, we have heard this many times. कई बार हमें चोट भी पहुंचती है।
We have heard this message, we have heard these promises so many times. हो सकता है कि इस संदेश को हमने कई बार सुना भी हो, But this is my prayer this morning. लेकिन आज की सुबह मेरी ये प्रार्थना है Let these promises just doesn't remain an information in our life. हो कि ये जो वादा है हमारे लिए एक सूचना बन के ना रह But जाए, let it become a revelation of God that we take hold on to. बट ऐसा हो कि ये परमेश्वर का वो वादा हो जिस पे हम पकड़ बना सके अपना। Because next day morning when Jacob woke up, क्योंकि अगले दिन सुबह जब याकूब उठता है, he said that I didn't know that God was in this place. पर वो कहता है कि मैं निश्चय ही ये जानता हूँ कि परमेश्वर इस स्थान में थे, God was with him. बट परमेश्वर उसके संग थे। We know that his promises are true. हम जानते हैं कि उनके उसके वादे सत्य हैं। Everything that we do हर एक चीज जो हम करते हैं or are planning to do, या फिर हम करने की योजना बना रहे हैं, let it come out of resting in God's comforting promise. हो कि परमेश्वर के वादे के द्वारा ही निकल कर वो आए, That even during these challenging times, कि इस चुनौतीपूर्ण समय में भी He is with us. वो हमारे संग है, His protection is with us. उसका सुरक्षा हमारे ऊपर He है, is leading us वो हमारा मार्गदर्शन कर रहे through हैं these difficult times. इस चुनौतीपूर्ण समय से And लेकर, He will keep His promise. और वो अपने वादे को पूरा करेंगे For our jobs, हमारे नौकरियों for के our लिए, business, हमारे व्यापार के लिए, whatever we do, हम चाहे कुछ भी क्यों ना our करें, studies, हमारे पढ़ाई, whatever we are going to do, जो भी हम करने जा रहे हैं, let it come out from this confidence हो कि इस हियाव से निकले that He is with us कि वो हमारे संग है and He never leaves us. और वो कभी हमें ना छोड़ेगा। Even in Jacob's life, याकूब के जीवन में भी, at the end of his life, उसके जीवन के अंत के समय में, in Genesis chapter 28 verse number 15 we can see उत्पत्ति that 28:15 में हम फिर से पढ़ सकते हैं, this is what Jacob says, याकूब ये बोलता है that God has been my shepherd कि परमेश्वर मेरा चरवाहा रहा है all my life मेरे पूरे जीवन में, to this very day. आज तक, To this very day. आज तक। Jacob could look back and reflect on what God has done in his life. याकूब पीछे देख के ये सोच पा रहा है कि परमेश्वर ने कैसे उसके जीवन में क्या क्या किया है। He could see and realize that God was a faithful shepherd. वो देख के इस चीज को महसूस कर पा रहा है कि परमेश्वर एक विश्वास योग्य चरवाहा रहा है। And I believe that this will be our testimony also. और मैं ये विश्वास करता हूँ कि यही हमारी भी गवाही हो That we will go through this pandemic, we will go through these challenges in our life. कि हम ये पेंडेमिक सिचुएशन, इस पेंडेमिक के चुनौतियों से निकल जाएंगे And we will turn back and see that God was with us. और हम पीछे देखकर ये कह पाएंगे कि परमेश्वर हमारे संग था। It doesn't matter what you go through, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, but His love and His comfort is always with us. लेकिन उसका सहयोग और उसका प्रेम हमेशा हमारे साथ है। Shall we pray? क्या हम प्रार्थना करें? Father, in the mighty name of Jesus, Lord, we come to you. प्रभु यीशु के नाम से हम तेरे सम्मुख में The आते हैं। name above every name. वो नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ That at the है, name of Jesus, every knee shall bow कि यीशु के नाम में हर एक and घुटना every टिके, tongue shall confess, Lord. कि हर एक जीभ अंगीकार करे। In that mighty name, right now, Father, we come to your throne. उस सामर्थी नाम से हम तेरे सिंहासन के We पास thank you for आते the हैं। beautiful message that Lionel brought before us, Lord. प्रभु वो सुंदर संदेश जो लायनल हमारे बीच में लेकर आया, Lord, he brought Jacob before us. प्रभु वो याकूब को हमारे And सम्मुख the लेकर, promises that you have given to और Jacob. याकूब को जो वायदा तूने दिया And we है, read in the Bible, Lord, प्रभु हम बाइबल में पढ़ते हैं the promises in the Bible कि बाइबल का हर एक are वायदा है, yea and amen. वो हाँ और आमीन है। Not only that's given for Jacob, वो केवल याकूब के लिए ही नहीं दिया it's गया, given for every one of us, वो हम God. में से हर एक जन के लिए दिया Lord, गया you है। are a God who changes our name. तू हमारे नाम को बदल देने वाला Whatever the परमेश्वर है। situation may be in our life, हमारे जीवन में परिस्थिति कुछ भी whatever क्यों the ना हो, background we may be coming हम from, जिस किसी पृष्ठभूमि से भी हम क्यों ना Lord, आते we हों, pray that today you will touch every one of your children. हमारी प्रार्थना है कि तू हम में से हर एक जन को छू Let ले। there be an encounter today, God. आज तेरे साथ में हमारी मुलाकात हो Lord, पाए। give us the whole church, Lord, the heart to meditate upon the message that we heard today, Father. अनुग्रह दे कि जो संदेश आज हमने सुना है उस पर हम मनन करने Father, I पाए। pray for every one of your children. प्रभु हम आपके सभी जनों के लिए प्रार्थना करते Right हैं। now, I pray for those who are sick, प्रभु उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं जो बीमार those हैं, who are in financial problems, जो आर्थिक तंगी से गुजर रहे those who हैं, are in relationship problems, जो रिश्तों में समस्याओं से जूझ रहे those who हैं, need deliverance, जिन लोगों को छुटकारे की those who आवश्यकता है, feel lonely and जो rejected. लोग अकेलेपन से गुजर रहे हैं,
हैं, तिरस्कार God, से like रहे हैं। Jacob, we may walk sometime lonely path, हो सकता है याकूब के समान कई बार अकेलेपन से होकर but हम गुजरे। you will meet us, God, प्रभु hallelujah. तू हमसे आकर And you मिलेगा, meet us because you want to bless और us. तू हमसे आकर मिलता है क्योंकि तू हमें आशीष So देना God, चाहता right है। now in your mighty name, प्रभु इस समय तेरे सामर्थ्य with all the से saints of God in the victory family, विक्ट्री परिवार में परमेश्वर के I सभी pray for संतों your के बीच, children, O Lord. प्रभु मैं आपके बच्चों के You लिए touch प्रार्थना, them right प्रभु now. तू उन्हें छू ले, Heal them, उन्हें Father. चंगा कर, And we command the sickness to leave in the name of Jesus. बीमारियां निकल जाएं यीशु के नाम Every से। work of the devil be gone in the name of हर एक Jesus. शैतान का कार्य यीशु के नाम से निकल We pray जाए। for every relation should be restored, O Lord. हर एक रिश्ते पुनः स्थापित होने पाए, Every profession be blessed, O God. हर एक पेशा आशीषित होने पाए, Every business take off, प्रभु hallelujah. हर एक व्यापार आगे बढ़ने पाए, Every bondage come down crumbling, हर एक hallelujah. बंधन टूट कर गिरने Oh, there पाए। is power in the name of Jesus. यीशु के नाम में सामर्थ Every है। chain be broken. हर एक जंजीरें खुलने Holy पाए। Spirit, touch your people, God. पवित्र आत्मा अपने लोगों को Those who are छू ले। not yet filled with the Holy Spirit, जो लोग आज तक पवित्र आत्मा से भरे नहीं Lord हैं, Jesus, fill them with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा तू तूने भर दे पवित्र Fill them आत्मा with से, your power. अपनी सामर्थ्य से भर Fill them दे, with your love. अपने प्रेम से भर That दे, we will tell somebody that God loves them, कि हम hallelujah. बताने पाए कि परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। There will be joy in the house, घरों में आनंद होने पाए, rejoicing in the घरों house, में आनंद होने पाए, forgiveness in the house. क्षमा होने पाए। Bless our church, Lord. हमारी कलीसिया को Bless आशीष all the दे। members of our church, हमारे कलीसिया के सभी even सदस्यों all को our आशीष, friends, हमारे सभी and दोस्तों our को भी, branch churches. शाखा कलीसियाओं को भी, Lord, whosoever may be watching us, और चाहे हमें कोई भी क्यों ना देख रहा हो इस माध्यम even से, guests, oh हो God, सकता कई मेहमान हो जो whosoever watching us, जो भी हमें देख रहा है, bless them in the name of Jesus, यीशु के नाम से हमें because you आशीष came to दे, bless us. क्योंकि तू हमें आशीष देने And आया your है। word say that we are blessed with every blessings और in तेरा heavenly places. वचन कहता है स्वर्गीय स्थानों में हर एक आशीष से हम Lead us आशीषित and हैं। guide us, God. अगुवाई कर, मार्गदर्शन दे, Even during this unlocked time, O Lord, और इस समय में भी जब कई चीजें जो है you अनलॉक give कर us दी गई wisdom हैं, how to behave, अनुग्रह दे कि हम बुद्धिमानी से how, काम how to करें, handle this freedom. और ये जो आजादी दी गई है इस समय पर उसको And बुद्धिमानी से give us उपयोग grace to करें। not to be slack in any matter, प्रभु God. किसी भी विषय में हम लापरवाह ना होने पाए इस We दौरान। also pray, God, you give wisdom to the sons of men to find some remedy for this virus. प्रभु तो मानव जाति पर यह अनुग्रह कर कि इस वायरस का इलाज वो ढूंढने And पाए, you will, God. और तू जरूर You देगा have मानव done it जाति in the पर। past, तूने पहले भी ये किया है and you will do it again. और तू फिर से Pray करेगा। for all those who are suffering, God. जितने लोग दुख उठा रहे हैं, Let your peace and joy cover them right तेरी now. शांति और आनंद उन्हें Let your ढांपने पाए। healing touch them, Father तेरी God. चंगाई की सामर्थ उन्हें छूने पाए। Bless our nation. हमारे राष्ट्र को आशीष, Bless everyone in this nation. हर एक जन को आशीषित Bless कर। our governments, God. हमारी सरकारों को आशीष, Bless the state government. Bless the nations of the whole world. केंद्र राज्य सरकारों को We आशीष also कर, पूरे pray दुनिया को for आशीष peace कर। to come in the nation of America. अमेरिका में भी तेरी शांति आने Give them पाए। grace to forgive one another, God. अनुग्रह दे कि वो एक दूसरे को क्षमा And करने remove पाए। lawlessness from the young people, God. कानूनहीनता को प्रभु, व्यवस्थाहीनता No को matter उनसे what दूर कर। happens, God. चाहे कुछ भी क्यों ना हो, Lord, give them grace to follow the spirit of law. और प्रभु कानून व्यवस्था का पालन करने का अनुग्रह दे। We give you all the glory. सारी महिमा हम तुझे देते हैं। Lead us and guide us. अगुवाई कर, And मार्गदर्शन in दे। Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Everybody said, सब कहें Amen, amen. Give a big clap unto the Lord wherever you are in your house. Together we are going to say the grace. मिलकर हम अनुग्रह कहेंगे। The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with us now and forever and ever. Amen, amen. Stay blessed and stay safe, and God's blessing be upon you. Amen.